ठीक है, so let's start recording. And This is the best application for thin films, interference in thin films. The experimental arrangement consisting of a monochromatic source of light is and a convex lens, glass plate, a plano convex lens. आवाज ठीक है, समझ आ रही है? नहीं आ रही? फिर क्या? फैंस करो ऑफ यार। और कोई ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि एम्पलीफाई तो कर नहीं सकते इसको। कोई सबसे ज्यादा शोर कर रहा है, वो इधर से होगा। ठीक है, let's try now. And a telescope. Now, coming to the experimental arrangement, consider a monochromatic source of light and allow the monochromatic source of light to fall on a convex lens L. From the convex lens, the light rays will become parallel and falls on a glass plate G inclined at 45 degrees. So from the glass plate G, the light rays will bend with 90 degrees and falls normally on a plane of convex lens, which is kept on a glass plate P since L. Now, so whenever the light rays are reflecting and interfering, then on the telescope, on the top of the glass plate G, we have a telescope, and through the telescope, if you observe, you will get a rings pattern like that. So why we are getting that rings pattern is just because of, take this lens L and kept on a glass plate P. So whenever light is incidenting on this one, since it is incidenting normally, that means angle of incidence I is 0, automatically angle of refraction are also 0. So now, since it will go angle of refraction here, now there is a formation of thin film in between bottom of the plane of convex lens and top of the glass plate. So this is the region where it is filled by air of refractive index mu. Now, at the top of the thin film, some part of light ray will reflect and some part light ray will refract. And again, from the bottom of the thin film, the light ray will reflect and moves outside. Since the light ray 1 and 2 are in a position to get superimposed. So due to that, if the path difference between the two light rays is n lambda, then you will get a dark fringe, bright fringe. And if it is n plus 1 by 2 lambda, we will get a dark fringe. So if you consider the path, or already we calculated the path difference between the two light rays which are reflecting from a thin film. So the path difference between the two light rays which are reflecting from a thin film is 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2, where mu is the refractive index of the thin film, t is the thickness of the thin film, r is the angle of refraction, which is 0, and lambda by 2 is the wavelength that we are using. And now, for this particular Newton's rings experiment, the thin film is formed by air. That's why mu is equals to 1. So refractive index of air is 1. And angle of refraction are also 0 because this is a normal incidence. Since light rays are incidenting on a plano convex lens normally. So whenever light rays are incidenting like this, the same will reflect back and both get superimposed and you are getting alternative bright and dark rings. Why the center of Newton's rings is dark and reflected case, that we are going to see now. So now the path difference will become 2 mu is 1 t cos r is 0 degrees plus or minus lambda by 2. So now your path difference will become 2t plus or minus lambda by 2. This is the path difference between the two light rays which are reflecting from the thin film in Newton's rings experiment. So at the center, the thickness of air film is 0. At this position, the thickness of air film is 0, and here you can have some t.
but at center the thickness of the air film is 0. That's why your path reference now will become 2 of 0 plus or minus lambda by 2, and path reference is equals to lambda by 2. So if path reference is lambda by 2, one can have a dark fringe. That's why the center of Newton's rings experiment, the center of this one in reflected case, not in transmitted case, in reflected case is a dark one. And after that we are having a bright and alternative bright and dark rings. Why we are getting alternative bright and dark rings is, since suppose at this particular distance, if the two light rays are superimposing and their path reference is n lambda, in this position you can see white fringe. Suppose the same will happen in this position also. So the same will happen throughout the lens. And after that, if you see through the telescope, one can have alternative bright and dark fringes. And why? If you move from center to the far away, all the rings will come closer to each other. And why we are going to see now. So up to here, the center of Newton's rings is a dark one. And if you take the condition for bright fringe, the condition for bright fringe is the path difference is equals to n lambda. And the same way for dark fringe is path difference is equals to n plus 1 by 2 lambda. Now, so take the path difference here, 2t equals to 2t plus or minus lambda by 2 is equals to n lambda, then 2t is equals to n lambda I'm not a prime user of YouTube. Plus or minus lambda by 2, and we can have 2t equals to n plus or minus 1 by 2 of lambda. So this is the condition for bright fringe under Newton's rings. And now coming here, the path difference is equals to 2t plus or minus lambda by 2 is equals to n lambda plus or minus, sorry, n lambda plus lambda by 2. And if you take this plus or minus lambda by 2 that side, then you can have 2t is equals to n lambda plus lambda by 2 plus or minus lambda by 2. Suppose if you take this one, lambda by 2 plus lambda by 2, or lambda by 2 minus lambda by 2. So it will become 0, then you can have n lambda. And suppose if it is lambda by 2 plus lambda by 2, again it will give you a lambda, which is an integer. Again, if you add this one to this one, you can have n lambda only. Suppose if n is 1 lambda plus lambda will give you 2 lambda. Already the value of 2 is there for n values. So simply we can write 2t is equals to n lambda. So these are the two conditions for dark fringe, and this is the condition for. यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हुई, ठीक है। सिंपल सा बात क्या है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बाय सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, और उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं उनमें कोई पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस आएगा, और वो पाथ डिफरेंस की वजह से आपके पास एक इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है। वो इंटरफेरेंस ब्राइट हो सकता है अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के इक्वल है, और अगर एन लैम्डा प्लस हाफ के इक्वल है तो वो डार्क फ्रिंज हो सकती है, ठीक है। सो बेसिक इंटरफेरेंस के बारे में जो आपने प्लस 2 में पढ़ा हुआ है उसी को आगे यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। Bright fringe. So now in the next step, what we are going to find out is what is the value of t, and substituting value of t, one can have the diameters. Since we can see the rings through the telescope, and one can calculate the diameter of the rings with the help of vernier scales. So the condition for bright fringe is 2t equals to n plus or minus 1 by 2 lambda, and for dark fringe is 2t equals to n lambda. So where t is the thickness of the air film here. Since it is a varying thickness, at center it is 0. If you keep on moving from center to end point of the plane of convection, the thickness of air film is keep on increasing. So now to calculate value of t,
take a planar convex lens on a plate P and extend the surface of planar convex lens, then you can have the radius of curvature of this planar convex lens, let us say capital R. And now at certain thickness, at certain height or at certain thickness T, take a ring of radius, take a ring M and N of radius smaller. So at center already we discussed, at center we are having a dark range, and then you can have bright, dark, bright, dark, bright. And now take some ring here at this position at a height T, take some ring that may be bright or dark, take some ring of radius smaller. And now let us call this interacting point as Q, since the value of QO is T and the value of O dash is 2R. Since from center to here, the radius of curvature is capital R, from here to here is capital R. The total value of O dash is 2R. And the value of QO is small t. Then the value of QO dash will become 2R minus t. From the symmetry or from the law of circles, we can have, from the geometry of circles, one can write Qm into Qn is equals to Qo into Qo dash. Nothing but the products of the chords are equal, like Nq into Qn is equals to Qo into Qo dash. Since they are not equal, but their products are equal, one has to remember that. And now the value of MQ and Qn, since Mn is a ring, their radius also equal. So the value of Qn is R and MQ is also R. So one can write R into R, that's equals to the value of QO. The value of QO is T into the QO dash is 2R minus T. Then if you multiply, then you can have R square equals to 2RT minus T square. Since T is the thickness, which is very thin, or it's a thin film. So if you square that thickness T, you can have very small value. So one can neglect the value of T square. Then you can have R square equals to 2R into T. That implies T equals to R square by 2 capital R, where small r is the radius of the ring, that may be bright ring or dark ring, and capital is the radius, capital R is the radius of curvature, and T is the thickness of that particular ring. So now take the value of T and substitute the conditions in bright and dark conditions. So substituting, take the condition of bright range 2T equals to n plus r minus 1 by 2 lambda, and substitute the value of T, R square by 2R in this condition. Since R is the radius of a particular ring, suppose if it is fourth ring radius, fourth bright ring radius, sixth dark ring radius. So now take the value and substitute in this condition T equals to Rn square, since n stands for that particular ring number, and Rn square by 2R equals to n plus r minus 1 by 2 lambda. And if you solve this one, Rn square and everything get cancelled, 2 get cancelled, Rn square by R equals to 2n plus r minus lambda by 2. And Rn square equals to 2n plus r minus 1 lambda r by 2, and finally you can have dn square equals to 2 of 2n plus r minus 1 lambda by lambda r, and that implies dn equals to 2 of 2n plus r minus 1 of lambda r. Since this is the diameter expression for bright ring, why we are so concerned about diameter means we can see literally through the telescope which is kept on the top of the glass plate. And finally, if you take the condition for darkening 2T equals to n lambda, and by substituting the value of T and this particular one, Rn square equals to 2R, since Rn is the radius of that particular darkening, and one can write that Rn, diameter Rn square, we know that diameter equals to 2 of the radius, and then R equals to D by 2. If Rn is a particular ring radius, then Dn will become its diameter. Then Rn square is equals to n lambda r. Finally, you can have dn square equals to 4n lambda r. So by using the expressions, one can calculate the diameter of bright rings and dark rings. And next, if you take D4,
So that means diameter of fourth dark ring. The expression for dark ring is dn equals to 2 under root n lambda r. And if it is for fourth ring, n value is 4. So 4 lambda r, then you can have 4 under root lambda r, and for D1 first dark ring, it will be 2 under root lambda r. D4 minus D1 will give you 2 of under root lambda r. Similarly, if we calculate for 16th dark ring and 9th dark ring, then also you can have D16 minus D9 as 2 root lambda r. So if you particularly observe these two expressions, in between first and fourth ring, the value is 2 root under lambda r. In between 9th and 16th ring also, the value is 2 root lambda r. So if you keep on moving from center to end part of the rings, at the center, we are having within a gap of 4 to 1. Suppose 4 to 1, you have the value is 2 root lambda only. The gap between fourth dark ring and first dark ring is 2 root lambda r. And that means there is a span of 3 rings only. But if we consider 9 and 16, there is around 7 rings. Even at 7 rings also spaced in a gap of 2 root lambda r. Here, the 3 rings are spaced in a gap of 2 root lambda. That means if we keep on moving from center to end part of this one, the closeness will be decreased. The distance between 2 rings will be decreased. Initially, if you observe that one, the gap between the 2 rings is very less. If we keep on it's high, and if we keep on moving, the gap between the 2 will come closer to each other. So this is about why the rings are closely spaced if we keep on moving from center to end part. So this is the reason. Within a gap of 2 rings also you have the same value. With 3 rings also you have the same value. Within a gap of 7 rings also you have the same value. So this is about Newton's rings. हाँ जी, इस स्लाइड के बारे में कोई अगर क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, ठीक है, जो करना पड़ेगा हाथ से, ठीक है। बस ये यहाँ पे देख के ये तो लग रहा है ना कि हाँ ठीक कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है ना इसने। जब हाथ से करोगे थिंग्स विल गो थ्रू, है ना। अच्छा, अब मेन बात क्या है कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने ये सारा डेरिवेशन रट्टा मारना है, ठीक है। ये मेन आइडिया क्या था कि न्यूटन रिंग का टोटल सेटअप कैसे काम करता है ना। अगर कोई चीज आपने एक्सपेरिमेंटली करना है तो पहले उसको थ्योरेटिकली भी समझना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब तक थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि जो न्यूटन रिंग्स फॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल न्यूटन रिंग्स का क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। एंड देन उस इंटरफेरेंस को यूज करके इसने रिंग्स बन गई। उन रिंग्स का डायमीटर आप मेजर कर सकते हो ना। अगर आपके पास कुछ रिंग्स पड़ी हुई हैं, उनका डायमीटर आप मेजर कर सकते हो यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट, है ना। और हमें पता चल गया कि थ्योरी में जो डायमीटर है, अब सपोज कर लो हम लोग डार्क रिंग्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मेजर कर सकते हैं, ब्राइट भी मेजर कर सकते हैं, डार्क भी मेजर कर सकते हैं। तो सपोज कर लो हमने डार्क वाली जो रिंग्स है उनका डायमीटर मेजर कर रहे हैं। अब जब डायमीटर आपने मेजर करेंगे तो वो डायमीटर किसके इक्वल आएगा, 2n लैम्डा r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। अब इस फॉर्मूला में d आपको पता है, ठीक है। r जो है वो क्या होता है, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। वो हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, या जब लेंस हम लोग लेंगे तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू का ले सकते हैं, ठीक है। तो ओनली अननोन पैरामीटर विल बी लैम्डा, ठीक है। तो हम लोग बाकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है ना। तो ये जो है ये हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट 3-4 मिनट है उसमें इसमें जो भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर आपके पास ये पता है कि इतना वेवलेंथ का लाइट है तो हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आर जो है वो अननोन रह जाएगा, तब लैम्डा आपको पता चल जाएगा, डी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने की, ठीक है, जो हमने प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में भी किया है, इसमें भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आने वाले 3-4 मिनट में वो ये डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। क्लियर है। मेन फार्मूला यही है क्या, 2 स्क्वायर रूट n लैम्डा। ये वाला अगर डार्क रिंग यूज कर रहे हो, अगर ब्राइट यूज करोगे तो ये नीचे वाला। सर इसमें d4 माइनस d1 का फार्मूला भी सेम है और 16 माइनस 9। हाँ जी सर वो मतलब क्या इफेक्ट करता है बच्चे, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप सेंटर से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो
पहले जो आपकी रिंग्स है उनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगा और एंड में स्पेसिंग कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जितने डिस्टेंस में पहले 3 रिंग आ रही हैं उतने डिस्टेंस में आगे जाके 7 रिंग आ जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात यही है इसमें। यहाँ अगर अपनी एग्जांपल लेनी है, जितना सर से दूर जाओगे पहले क्राउड कम है, जैसे जैसे पीछे जाओगे क्राउड बढ़ती जाएगी, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ मेन आइडिया ये है कि हमें जब नंबर चूज करना है, क्योंकि जब कोई दो चीज बहुत नजदीक नजदीक होंगी तो उनको मेजर करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि हम लोग कम नंबर वाला, मतलब कि D1, D4, D3 कुछ ऐसे नंबर अगर मेजर करेंगे तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, मेजर करने इजी होंगे, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे कि हमने 16 मेजर करना है, देन 17 मेजर करना है, तो बहुत पास में होंगे तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सर तो इससे आगे भी तो ऐसा वाला कंडीशन बन सकता है। कैसे? D16 के आगे हाँ जैसे बनेगा वहाँ पे बनेगा। difference है, कोई- उसने सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे आपकी जो रिंग्स हैं वो डेंस होती जाएंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो उसने 2 एग्जांपल लेके ये कंडीशन शो कर दी। ये आप कोई और 2 नंबर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सर पता कैसे चलेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है? वो भाई वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे देखना, उसने एक्सपेरिमेंट करके नहीं यार, यहाँ पे नंबर डालता रहे, एन की वैल्यू डालता रहे, ठीक है ना। And next step, what अच्छा we are going नेक्स्ट to see जो is how can क्वांटिटीज we कैसे find out मेजर the करनी radius है वो of the बताएगा। region. If we don't know R, how can we calculate? And if you don't know lambda, how can we calculate? And if you don't know mu, a refractive index of an unknown liquid, how can we calculate? We can see the next step. As we already calculated the diameter of dot ring, dn square equals to 4 and lambda for a particular ring number n, and for a particular ring number m, dm square can be written as 4m lambda. So now dm square minus dn square will give you 4 lambda of m minus n. And by if we want to know the, चलो मैं ही बात कर लेता हूँ ना, ठीक है। इसने ये पहला एक फॉर्मूला लिख दिया। जो पहला पार्ट है वो क्या कर रहा है, ये नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो है इसने रेडियस मेजर किया। तो इसने क्या किया कि कोई भी रिंग पिक कर ली। सपोज कर लो एक रिंग उसने पिक कर लिया 1, एक रिंग पिक कर लिया 4, ठीक है। तो हमारे पास अब रिंग्स बनी पड़ी हैं, उनका डायमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने वो मेजर कर लिया। अब उसने वो जो 1, 4 है उसको एक को n बोल दिया, एक को m बोल दिया। आप कोई भी n m पिक कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो एक n के लिए फॉर्मूला बन गया, एक m के लिए फॉर्मूला बन गया। m और n तो इंटीजर ही होगा। इंटीजर होगा ऑफ कोर्स। रिंग जो है एक रिंग हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1.5 रिंग तो होगी नहीं ना, ठीक है ना। सो उसने कोई भी 2 नंबर पिक कर लिए। इट इज अप टू यू, कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को 1, 4 अच्छा लगता है, किसी को 2, 6 अच्छा लगता है, किसी को 3, 7 अच्छा लगता है, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। सो कोई भी 2 नंबर आपने पिक कर लिए, एक को m बोल दिया, एक को n बोल दिया, दोनों का डायमीटर हमने मेजर कर लिया, ठीक है। अब जब डायमीटर आपके पास आ गया तो आपने यहाँ पे दोनों डायमीटर का सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक, एंड देन डिवाइड बाय 4 लैम्डा mn। अगर r फाइंड आउट करना है, लैम्डा नोन है, जो सोर्स का वेवलेंथ है वो हमें पता है। और अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय r कर देंगे। तो हमें r पता होना चाहिए था, ठीक है। सो यहां से दोनों एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। रेडियस ऑफ लेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे करना है। आपके सिलेबस में जो है, जो थ्योरी के सिलेबस में, वहां पे सिर्फ वेवलेंथ फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जब आपने प्रैक्टिकल करना है तो आप इसमें से ये तीनों भी कर सकते हो, ठीक है। सो आप जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तब हमने क्या करना है, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक बार आपने जो यहाँ पे किया था, डायमीटर फाइंड आउट कर लिया विदाउट एनी लिक्विड, एयर में, ठीक है, क्योंकि एयर का वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ठीक। तो इसी वजह से ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा बाय 1 है, ठीक है। और जब ये किसी मीडियम में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना। सो उसने पहले एयर में कर दिया, कोई भी 2 नंबर आपने पिक किए, उनका 2 डायमीटर फाइंड आउट कर लिए और ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देन उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई जो भी मटेरियल आपने वाटर का मेजर करना है, वाटर डाल दिया।
जहां पे अब एयर था वहां पे वाटर फिल हो गया, ठीक है। अब जब वाटर फिल हो गया तो जो आपका डायामीटर वाला फॉर्मूला था उसमें लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा बाय म्यू, क्लियर है। सो लैम्डा बाय म्यू के साथ रिप्लेस हो गया। अगेन हमने जो यहाँ पे n और m दो वैल्यूज चूज की हुई थी, सेम दो वैल्यूज का अब डायमीटर मेजर कर लिया, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। तो जो आपका डायमीटर होगा वो जब आप लिक्विड फिल करोगे तो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। जो रिंग्स होंगी दैट विल बी ऑफ स्मॉलर डायमीटर। तो यहाँ पे आपने dn और dm के लिए अगेन डायमीटर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहां से फिर dn माइनस dm किया तो ये फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इस फॉर्मूले में जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज इक्वल टू दिस नंबर जो विदाउट वाला था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू dm प्राइम स्क्वायर माइनस dn प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, ठीक है। अब सारे डायमीटर आपने मेजर कर लिए हैं, क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मेजर कर सकते हो। बताइए अब अगर इसमें क्या प्रॉब्लम, इजी है कोई, सिर्फ वो फॉर्मूला जो है पूरा जो डेरिवेशन किया है वो इसलिए है क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ना कि ये फॉर्मूला आ गया तो इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है, समझ आना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चीज है ना, कोई चीज बना के आपके सामने मैं रख दूं कि ये खाओ, आपको पहले ही रहेगा पता नहीं बीच में क्या डाल के लाया। सिंपल सी बात है ना, हर एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है। अब अगर वही चीज कोई आपको बनाते हुए दिखा दो कि भाई ऐसे बनाया है ना, तो आपको कोई शक नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ ठीक है मुझे समझ में आ, ठीक है ना। तो सेम वे से अगर मैं सिंपली आपको वो फॉर्मूला प्रोजेक्ट कर देता हूँ देन इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड ना कि ये कैसे हो गया। अब हमने देख लिया कि हाँ यार बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है जिससे हम लोग ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए भाई। है जी, मतलब हाँ सेटअप मींस क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहे हो? हाँ वो आते हैं हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकली आपको लग रहा है ना कि ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। क्योंकि अगर हमें वही नहीं लगेगा कि ऐसा हो सकता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल दिया और बोल रहा हूँ गिलास में अब जो पानी है वो मीठा हो गया, है ना, अगर आप इस पे कन्विंस ही नहीं हो तो डाल के चेक करने वाला काम तो बाद की बात है ना। पहले एटलीस्ट हमें कन्विंस तो होना पड़ेगा ना कि हाँ मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज बोलती है कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो वाटर विल बी स्वीटन, है ना, मीठा हो जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं कि डाल दिया अब मीठा हुआ या नहीं हुआ, दैट इज द सेकंड पार्ट। लेकिन अगर हम लोग कन्विंस्ड ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है या हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जी मैंने गिलास में नमक डाल दिया, वाटर जो है वो बहुत मीठा मीठा हो गया ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू विल से नहीं यार बकवास मारे जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज इज दैट इज कि हमें एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमारा जो सेंस है वो बोल रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस एक्टिविटी, है ना। उसके बाद फिर हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करने में कन्विंस्ड हो जाएंगे। अगर हम लोग पहले ही ये बोल दें कि नहीं यार ये जो आप बोल रहे हो ये लॉजिकल नहीं लग रहा, है ना, तो फिर वो करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, है ना। कोई चीज मैं ये बोल दूं कि जी यहां से लंदन जाया जा सकता है बाईसाइकिल, है ना, अब क्यों हंसे, क्योंकि दैट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल, है ना। अब अगर ये चीज अगर हम लोग ये बोलेंगे कि बाय कार जाया जा सकता है, स्टिल पॉसिबल, है ना, कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है, हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला केस है वो सोचने की इच्छा ही नहीं है, ना, दैट्स व्हाई वी लाफ्ड कि नहीं यार ये तो मजाक हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी होता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। हमने जो थ्योरी की है दैट इज फॉर गेटिंग कन्विंस्ड अवरसेल्फ के या दैट थिंग्स सीम्स रीजनेबल, ऐसा हो सकता है, एंड नाउ वी विल एग्जीक्यूट दैट थिंग, ठीक है जी। ओके सो ये एक सेटअप है, ठीक, जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें नीचे यहाँ पे वही एक ग्लास प्लेट है और एक उसके ऊपर लेंस रखा हुआ है। ये जो है टेलीस्कोप है जिसके थ्रू हम लोग वो लेंस को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये बनेगी रिंग्स बनेगी वो बहुत
छोटा साइज होगा तो नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, हमें माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उस माइक्रोस्कोप के साथ यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, अगेन वर्नियर स्केल है, एक मेन स्केल रीडिंग है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग है, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई बिलीव कि वो आपको आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब पहला काम सिर्फ हम लोग वेवलेंथ डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम नॉट प्लेइंग विद दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो झंझट है वो नहीं डाल रहे हैं हम लोग। सोडियम लाइट है, अगेन बहुत सारी लाइट अवेलेबल है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो हमें कोई एक पर्टिकुलर लाइट पिक कर लिया, लाइट ऑन कर दी, ठीक। जब फिजिकली ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दिस पार्ट इज डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि उसको जो एक्चुअल में सेटिंग करना होता है, दैट इज द की पार्ट। लेकिन अब यहाँ पे वो थोड़ा सा इजी है जी, फिजिकली ये हमारे लैब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिकली ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि जब आपने उसको लेंस को सेट करना है और टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है, थिंग्स टेक अ लिटिल टाइम, ठीक है। लेकिन चलो थ्योरेटिकली इसमें सिमुलेशन में दैट इज इजी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन पार्ट बच जाता है वो क्या है कि हमें इस जो डायमीटर जो रिंग है उसका डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। अब अगेन लेट्स पिक सम नंबर्स, एन और एम हमें पिक करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि वो नंबर जो है मैंने 1 ले लिया एंड 4 ले लिया, ठीक है। मुझे अच्छे लगते हैं कोई भी दो नंबर, आप भी कोई भी पिक कर सकते हो। अब जब आपने किसी सर्कल का डायमीटर मेजर करना है, रणो की ये निकलेगा, हाँ निकला है, ठीक है। अब ये मेरा एक सर्कल है ना, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार यहाँ पे रख के स्केल की रीडिंग ले लूंगा, है ना, एक बार यहाँ पे रख के स्केल की रीडिंग ले लूंगा, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव मी द डायमीटर। सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैंने क्या कर रहा हूं, ये मेरा जो है ये क्रॉस बार आपको आई होप कि नजर आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस बार है, तो ये क्रॉस बार बेसिकली इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये स्केल पे पोजीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका पहला जो है वो डार्क रिंग है, ठीक है। तो पहले डार्क रिंग के मैं इस एज पे क्रॉस बार ले आता हूं ना, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको मूव किया, नहीं सॉरी गलत मूव हो गया, ये उसका फोकसिंग के लिए था ना, यहाँ पे मूव होना था, उसको लेफ्ट राइट मूव करना है ना, हाँ ये हो रहा है, ओके। सो जो फर्स्ट ब्लैक रिंग है उसके एज पे मैंने क्रॉस वायर लिया है, क्लियर है। अब यहां से नीचे इस स्केल से मैं रीडिंग नोट कर लूंगा, ठीक है। वो आप पे मैं छोड़ रहा हूं, एंड आई एम बिलीविंग कि आपको ये हैंडल करना आता है, ठीक है जी। सो लेट्स कॉल दिस x1, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? एंड देन उसके बाद क्या करना है, हमें इसी क्रॉस वायर को दूसरे साइड पे लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस उल्टा करके इधर जाएंगे, ठीक है। इसको हल्का फुल्का फाइन ट्यून आप कर सकते हो, ऑलमोस्ट हम लोग उस एज पे है ना। तो अब हम लोग लेफ्ट एज पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम लोग यहां से पोजीशन मेजर कर सकते हैं, ठीक जी। तो अब आपके पास ये पोजीशन जो है, लेट्स अज्यूम कि दिस इज x2, तो x1 माइनस x2 विल गिव यू द डायमीटर, सो दैट विल बी d1 डायमीटर, ठीक है। n हमारा 1 हो गया, फिक्स्ड हो गया, फ्रीज्ड है, कोई इशू नहीं है ना हमें यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा नंबर हमने चूज किया था, लेट्स से 4, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, फोर्थ रिंग का डायमीटर मेजर करना है। तो जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं ये 0 से ही मेजर कर रहे हैं, जो रीडिंग डज इट मैटर? जीरो से नहीं है भाई एक बात सुन, ये मेरा स्केल है, ठीक है। कोई भी जो हम लोग नॉर्मली स्केल यूज करते हैं ना, दिस साइड इज 0, दिस साइड इज 15, मैंने यहाँ पे रख दिया मेरा जो रिंग है ना। अब मेरे लिए क्या है, एक यहाँ पे रीडिंग और एक यहाँ पे रीडिंग मैटर करती है ना, 0 का मुझे कोई मतलब ही नहीं है, आई समझ में। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो आई कुड अंडरस्टैंड कि ये जो है ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, ठीक है। मुझे इसकी 0 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 पोजीशन का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देख रहे, ठीक है। अगर मैं ये देखना हो कि ग्राउंड से कितना हाइट है, देन इट मेक सेंस, है ना। अगर मैंने सिर्फ ये देखना है कि
इसका और ये जो मेरी चेयर है, इन दोनों की हाइट का क्या डिफरेंस है, तो डज नॉट मैटर कि मेरी जीरो कहां पे है। ठीक है, मेरी जीरो यहां पे भी हो सकती है, मेरी जीरो आप वाले फ्लोर पे भी हो सकती है। क्लियर है ना, क्योंकि डिफरेंस इज डिफरेंस। ठीक है, कन्विंस्ड हो? ओके गुड। ठीक है, तो अब हम लोग वापस चलते हैं, ये आ गया आपका सेंटर। ठीक है, अब हमने जाना है फोर्थ डार्क रिंग पे। तो हम लोग एक साइड पे पहले राइट की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज एक डार्क रिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा डार्क रिंग पास हो गया, तीसरा हो गया, एंड देन चौथा। ठीक है, तो हमने काउंट करके 4 जो डार्क रिंग थी उनको निकाल दिया। ठीक है, और जो एज था फोर्थ डार्क रिंग का, उस पे हमने हमारा क्रॉस वायर सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नजर आ रहा है ना, आगे वो जो डार्क और ब्राइट का डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, जो उसने थ्योरी में बोला था वो हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है। प्लस इसके साथ क्या है कि जब हम लोग ज्यादा बड़े नंबर चूज करेंगे इट विल बी डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि देखना मुश्किल हो जाएगा कि कितना नंबर है। तो इट्स बेटर कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर तक ही हैंडल कर लें, इससे ज्यादा ना जाए। अब यहाँ पे मेरी एक रीडिंग दोबारा से आ गई, लेट्स से दिस इज x3। ठीक है, अब फिर मैंने क्या करना है, इसी फोर्थ रिंग के दूसरे एज पे जाना है। तो उसके लिए मैं फिर क्या करूंगा, इसको वापस सेंटर पे लेके जाऊंगा पहले। ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया। अब सेंटर से हम लोगों ने वापस दूसरे साइड की तरफ वाले 4 रिंग काउंट करने हैं। सो ये आपका पहला चल गया। सो दिस इज रिंग 1 क्रॉस हो गई, फिर रिंग 2 क्लियर हो गया, रिंग 3 हो गया, एंड देन रिंग 4 हो गया। ठीक है जी, अब ये जो नंबर है लेट्स कॉल दिस x4। ठीक, अब मेरा x4 माइनस x3 विल गिव दी डायमीटर फॉर दी फोर्थ रिंग। ठीक है, वो कितना हो गया d4। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, d4 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 n minus m, that is 4 minus 3 into r will give us the wavelength। ठीक है, r की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ लेंस इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरी नजर में। तो क्लियर है, कोई क्वेश्चन हो अभी तक? सर x3 minus x4 नहीं है, इससे वाला x3 है। भाई अब डिपेंड ये करता है कि आप स्केल कैसा यूज कर रहे हो। अगेन अगर दिस साइड इज 0 दिस साइड इज 15, तो मेरा ये सपोज कर लो x1 है ये x2 है ना, तो मुझे बड़े में से छोटा करना है ना, डिफरेंस लेना है। माइनस साइन इज नॉट मैटर, है ना, मैग्नीट्यूड सेम आएगा ना। अगर आप माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो डायमीटर है दैट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, माइनस समथिंग इज नॉट एन डायमीटर, है ना, तो वो आप समझ सकते हो उस चीज को, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। क्लियर है ये? ठीक है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो अब इससे आप लोग वेवलेंथ जो है बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो है हमने अगेन जैसे लेजर डाइवर्जेंस के लिए हमने 3 या 4 डिस्टेंस पे डाटा लिया था, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 या 4 पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो D1 ले लो, D2 D3 D4, एंड देन इन चारों का फिर 1 और 2 को यूज करके वेवलेंथ कर लो, 2 और 3 को यूज कर लो, 3 एंड 4 को यूज कर लो, 4 एंड 1 को यूज कर लो। ठीक है, आपके पास 4 वेवलेंथ की डाटा आ गया फॉर दी सेम वेवलेंथ। ठीक है, उनको एवरेज कर लेंगे, ऑल 4 विल बी इन सेम रेंज, है ना, कोई एक आध नैनोमीटर को इधर हो जाएगी कोई इधर हो जाएगी, डज नॉट मैटर। और वो क्यों होगा, क्योंकि हमारा जब हम लोग रीडिंग ले रहे हैं मे बी हम लोग थोड़ा सी रीडिंग गलत ले रहे हैं, है ना, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग जो है वो गलत नहीं होगा कभी भी, है ना, वो तो क्लियर है कि यही होगा। इशू कहाँ पे आएगा, जो वर्नियर और मेन स्केल का जो मैचिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, कि कौन सा मैच कर रहा है। कोई बच्चा बोल देगा कि 10वीं मैच कर रही है, कोई बोलेगा नहीं यार 12वीं कर रही है, कोई बोलेगा 13वीं कर रही है ना, दैट्स इट, इससे अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जितना आप ज्यादा ध्यान से एक्यूरेटली करोगे, उतना आपकी जो 4 अलग अलग वेवलेंथ आप फाइंड आउट करोगे वो सब सेम होएंगी। अगर आप थोड़ा सा नेग्लिजेंसली करोगे, थोड़ा सा ध्यान से नहीं करोगे, तो वो जो वेवलेंथ होंगी वो थोड़ी थोड़ी डिफर करेंगी। ठीक है, और एवरेज लेने का मेन रीजन यही होता है कि हम लोग जो एरर कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है?
ये आपने dm की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर डाल दिया, ठीक है। अच्छा आप एक मिनट, अगर इसको मैं एयर में हूं पहले तो जो रिंग्स थी वो बड़ी वाली थी ना, अब जैसे ही वाटर में जा रहा हूं श्रिंक हो गई, है ना। जो वहां पे हमने वो थ्योरेटिकल पढ़ा था कि म्यू से डिवाइड हो जाता है डायमीटर और म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो डायमीटर शुड श्रिंक। यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो गया, नजर आ रहा है ना कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद सेम प्रोसीजर हमने D1 और D4 के लिए रिपीट करना है, और इन दोनों का जो विदाउट और विद लिक्विड वाला जो आपका 2 डायमीटर होंगे उनको यूज करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है। मेरी तरफ से जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो मैंने कर दिया। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे कोई क्वेश्चन है? ये तो बचे बेचारे थोड़े से हैं। ये मोइन बहुत सियाना बेटा है बेचारा, ये हर क्लास में आता है ना। प्रीत इस क्लास का ही नहीं है, दूसरा भी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटे कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। चलो ठीक है, फिर मैं आपको एग्जिट कर रहा हूँ ना यहाँ से, अटेंडेंस हो गई आपकी।